بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 37 سے لے کر کے شعر نمبر 40 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَخْرُوطٌ مِّنَ الْأَنْفِ مَارِنٌ عَتِيقٌ مَتَى تَرْجُمْ بِهِ الْأَرْضَ تَزْدَدِي۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَأَعْلَمُ مَخْرُوطٌ، وہ اس اونٹنی کے اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا ہے، مخروط من الانف مارن، اور اس کے ناک کا بانسا چدا ہوا ہے، عتیق، وہ ایسی اصیل ہے، متا ترجم به الارض، جب وہ زمین کو سونگتی ہے، تزددی، تو وہ تیز ہو جاتی ہے۔ شاعر اپنے اونٹنی کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اس کے چہرے کے، اس کی آنکھوں کی، اس کے رخسار کی، اس کے سر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے شاعر بیان کر رہے ہیں کہ جو میری اونٹنی ہے وہ سفر سے یعنی باخبر ہے، اور وہ زمین سونگ کر کے سفر کرتی ہے اور پھر اپنے رفتار سے چلتی ہے، کیونکہ سفر پیشہ اونٹ زمین کو سونگ کر کے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ پانی کس قدر دور ہے۔ اگر پانی زیادہ دور ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے رفتار کو تیز کر دیتے ہیں، اور اگر پانی قریب ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے رفتار کو کم کر دیتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنی اونٹنی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری جو اونٹنی ہے وہ سفر پیشہ ہے اور تجربہ کار ہے، راستے کے سفر کو بڑے اچھے طریقے سے سفر طے کرتی ہے۔ عالم جو ہے یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو۔ اس کی جو مؤنث ہے وہ علماء آتی ہے۔ مخروط یہ چھدے ہوئے کو کہا جاتا ہے، چھدا ہوا ہونا، اور مارن جو ہے یہ کہا جاتا ہے ناک کے بانسے کو۔ اس کی جو جمع ہے وہ موارن آتی ہے، اور انف ناک کو کہا جاتا ہے۔ عتیق بمانا ہے عمدہ، آزاد، شریف۔ یہاں پہ عمدگی کے معنی میں ہے اور اصیل ہونے کے معنی میں ہے۔ ترجم جو ہے رجمہ نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور ترجم جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف بمانا ہے پتھر مارنا یا پتھر پھینکنا، اور یہاں پر ترجم به الارض سے مراد زمین پر مارتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کو سونگتی ہے۔ تزدد جو ہے یہ باب افتعال سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے بمانا ہے تیز ہونا، تیز چلنا۔ یہاں پہ جو آخر میں بوجہ وقف دال ساکن ہوئی تو اجتماعی ساکنین ہوا، درمیان یا کو حذف کر دیا تو تزددی بن گیا، جیسے کہ سورہ یوسف میں ہے وَتَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ۔ آج کا سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ وَإِن شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِن شِئْتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَةَ مَلْوِيٍّ مِّنَ الْقَدِّ مُحْصَدِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَإِن شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ، اگر میں چاہوں کہ وہ تیز نہ دوڑے تو لم ترقل، وہ تیز نہیں دوڑے گی۔ وَإِن شِئْتُ أَرْقَلَتْ، اور اگر میں چاہوں کہ وہ تیز دوڑے تو وہ تیز دوڑے گی۔ مخافت ملوی من القد محصد، مضبوط تسمے کے بٹے ہوئے کوڑے کے خوف سے۔ اس شعر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اپنی اونٹنی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری جو اونٹنی ہے وہ انتہائی فرمانبردار ہے، شائستہ ہے، اور سوار کے قبضے میں رہتی ہے، سوار کے اشاروں کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ اس قدر تیز ہے کہ اس کو کوڑا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود ہی چلتی رہتی ہے، اور صرف اس کو خوف اگر ہو جائے کوڑے کی تو پھر اس خوف کی وجہ سے دوڑتی رہتی ہے۔
मतलब इस शेर का ये है कि वो इंतहाई फर्माबरदार है, शाइस्ता तरीके से चलती है। जब आप चाहो तो वो तेज हो जाती है, और जब आप चाहो कि वो तेज न दौड़े, खामोश यानी आहिस्ता से चले, तो फिर वो आहिस्तगी के साथ चलने वाली है। तुर्किल जो है ये बाब इफ़आल से सीगा वाहिद मुन्नस गायब फेले मुजारे मारूफ है, बमाना है दौड़ना चलना। अरकलत ये सीगा वाहिद मुन्नस गायब फेले माजी मारूफ है, बमाना है चलना दौड़ना। लफ्ज़ शिअ्तु जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी शिअ्तु, ये ज़रब यज़रिब से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, बमाना है चाहना। मखाफा खौफ को कहा जाता है। मलवियुन जो है ये इसमें मफूल का सीगा है बाब ज़रबा यज़रिबु से, इसका माना है रस्सी बटना। ये मलवियुन मौसूफ है और इसकी जो सिफत है सौतुन वो महजूफ है। तकदीरी इबारत कुछ यूं होगी कि सौतुन मलवियुन बटा हुआ कोड़ा। मलवियुन असल में मलवुयुन था, फिर सय्यदुन वाले कायदे से वाव को या किया और फिर या को या में इदगाम किया और फिर या के माकबल को कसरा दे दिया तो मलवियुन बन गया। लफ्ज़ कद जो है ये इसको काफ के कसरे के साथ, काफ के फतहे के साथ और काफ के जम्मे के साथ पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको काफ के कसरे के साथ पढ़ें तो ये होगा क़िद्दुन, बमाना है तस्मा या चमड़े का बर्तन। और अगर हम बिफतहिल काफ हम इसको पढ़े तो इसका माना होगा कद, बमाना है मिकदार। और अगर हम बिज़म्मिल काफ इसको पढ़े तो इसका माना फिर होगा दर्द शिकम वाला। मुहसद ये बाब इफ़आल से इसमें मफ़ऊल का सीगा है, बमाना है मजबूत बटा हुआ होना। व इन शिअ्तु, और यहाँ पे जो व इन शिअ्तु है इसको ये जो शायर हैं इन्होंने अपनी तरफ यानी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल किया है और इसको आप वाहिद मुज़क्कर मुखातिब कह करके व इन शिअ्त भी पढ़ सकते हैं। फिर इसका माना ये होगा कि ए मेरे मुखातिब, अगर आप चाहें कि आपकी ऊँटनी तेज न दौड़े तो वो लम तुर्किल, वो तेज नहीं दौड़ेगी। व इन शिअ्ता अरकलत, और अगर आप चाहें कि आपकी ऊँटनी तेज दौड़े तो वो तेज दौड़ेगी। इस शेर के अंदर जो है व इन शिअ्तु को हम व इन शिअ्ता पढ़ेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इबारत हम पढ़ते हैं व इन शिअ्ता सामा वासितल कौरि रअसुहा व आमत बिज़बइहा नजाअल हफैदती। इसका तर्जुमा करते हैं व इन शिअ्ता सामा वासितल कौरि रअसुहा, अगर आप चाहे कि इसका सर पालान की अगली लकड़ी से बुलंद हो जाए। व आमत बिज़बइहा नजाअल हफैदती, व आमत तैरेगी बिज़बइहा अपने दोनों बाजुओं के साथ, नजाअल हफैदती शुतुरमुर्ग के तेज दौड़ने की तरह। इस शेर के अंदर मुसन्निफ अपनी ऊँटनी की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि अगर आप चाहें कि उसका सर बुलंद हो जाते हुए चलते हुए तो ये ऐसे ही करेगी और फिर ये शुतुरमुर्ग की तरह तेज दौड़ेगी। यहाँ पर जो है ना कि जब उसका सर पालान से ऊपर हो जाए सवारी का तो ये तेज दौड़ने की इलामत होती है और तेज जाने की इलामत होती है। तो इसी तरह शायर जो है वो अपने ऊँटनी के सर के तेजी को, सर के उठने को और तेजी को बयान कर रहे हैं कि वो रास्ते में जाते हुए सुस्त नहीं है बल्कि वो तेज रफ्तार है, तेजी के साथ जाती है। सामा ये बाब मुफाल से सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फेल माजी मारूफ है, बमाना है बुलंद होना। वासित जो है ये पालान के अगले हिस्से को कहा जाता है और अलकोर जो है ये किताबे को कहा जाता है। इसकी जो जमा है वो अकवार और किरान आती है। रास बमाना है सर। आमद सीगा वाहिद मुन्नस गायब फेली माजी मारूफ नसरा यंसुर से, इसका माना होता है तैरना। बिज़बइहा इसका माना है ज़बआइन, बमाना है बाजू। असल में ये ज़बआइन था, नून इजाफत की वजह से गिर गया तो भी ज़बइहा बन गया। नजा ये नसर यंसुर से मस्दर है, बमाना है तेज चलकर आगे बढ़ना। और हफैदत जो है ये मुज़क्कर शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। आज के सबक का आखिरी और चौथा शेर हम पढ़ते हैं।
अला मिस्लिहा अमजी इज़ा क़ाल साहिबी अला लैतनी अफ्तीक मिन्हा व अफ्तदी। इसका तर्जुमा हम कुछ यूं करते हैं। सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ेंगे, इज़ा क़ाल साहिबी अला लैतनी अफ्तीक मिन्हा व अफ्तदी, और बाद में हम फिर अला मिस्लिहा उम्जी का तर्जुमा करेंगे। इज़ा क़ाल साहिबी अला लैतनी अफ्तीक मिन्हा व अफ्तदी, जब मेरा दोस्त कहने लगे कि ए काश इस मुसीबत से फिद्या देकर मैं तुझे भी छुड़ा लेता और मैं भी छूट जाता, तो फिर कहते हैं अला मिस्लिहा अमजी, इस जैसी ऊंटनी पर मैं सवार होकर के फिर गुजरता हूँ। इस शेर का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात मेरे साथी जो है वो सफर से डर जाते हैं और कहते हैं कि जो आपकी ऊंटनी है वो कमजोर है, ये जाने के काबिल नहीं है, सफर के काबिल नहीं है। तो कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि आपने क्या मुसीबत रखी हुई है, इस मुसीबत को हम यानी फिदिया दे करके हम भी आजाद हो जाते, आप भी आजाद हो जाते। मतलब यह है कि आप इस ऊंटनी को तब्दील कर दो, इसके अलावा किसी और ऊंटनी को ले लो। लेकिन कहते हैं कि मेरे दोस्त की अलग सोच है और मेरी अलग सोच है। मेरे दोस्त इसके बारे में सोचते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ग्रां कदर है, और कहते हैं आला मिस्लिहा अमजी, कि मैं इसी के ऊपर रह करके सवारी करता हूं और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता हूं। अला मिस्लिहा, इस हा की जो जमीन है ये ऊंटनी की तरफ लौट रही है, और इसका मतलब ये है कि भाई इन सिफात वाली ऊंटनी के साथ, इन सिफात वाली ऊंटनी के पीठ पर मैं सवार होकर के सवारी करता हूं और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता हूं। सिफात से मुराद जो पहले इसकी यानी उस ऊंटनी की सिफात को बयान किया गया है वो मुराद है। अमजी ये ज़रब यज़रिबु से मुजारी का सीगा है, बमाना है गुजर जाना। जैसा कि सूरह अनफाल में अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फ़क़त मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, साहिबी या मुतकल्लिम की है और साहिब बमाना है दोस्त। अफ्तीका में जो काफ जमीन है वो मुखातिब है जो लौट रही है शायर की तरफ, और अफ्दी जो है ये ज़रब यज़रिबु से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ेल मुज़ारी मारूफ बमाना है माल वगैरह दे करके छुड़ाना। जैसा कि सूरत साफात में है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अफ्तदी ये बाब इफ्तिआल से सीगा वाहिद मुतकल्लिम का है, फ़ेल मुज़ारी मारूफ बमाना है फिदिया देना। जैसा कि सूरह मारिज में अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी। यहाँ पर जो है ये फिदिया देने के माने में है। तो अजीज तलबा किराम, आज के सबक के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाअल्लाहुल अजीज हम आइंदा सबक में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।